Last class discuss करितले what is smriti. So smriti means what is remembered, and the word smriti has derived from the word smri, and smri means to remember. The meaning of smri is to remember. Okay, so so smriti is also a very important source of Hindu love, and it is a principal source also, and it is of human origin. Unlike Smriti is of human origin. Shruti is of divine origin, Smriti is of human origin. And it is believed that Smriti are Smritis are to be the recollections of the rishis. So कौन हुए ना जो जिनस आम वेदस बा आम जो श्रुति रहा ताकू कहला दैट इज हर्ड ताकू शुणिबा परे जो ऋषि मुनि माने थिले सेमाने से वेदस को शुणिबा परे तांकर जो इंटरप्रिटेशन थिला वेदस रो सेटा को से जो लिखिले सेटा को आमे कहूछु स्मृति बोली. ओके फर्स्ट शुणिले वेद को शुणिला परे समाने निजे निजे से जिंसटा को इंटरप्रेट कले इंटरप्रेट करके समाने जहा लिखिले ऋषि मुनि माने ताको कुआ जाय स्मृति. Okay, and whatever the rishis are handed down, those are smriti. And it can be also said that the smritis are written as the memoir of the knowledge of the sages. जोटा मैं already कहि सारी जोटा सेमानकर memory रे रहिला after listening to the shruti, whatever they contended in their memories, and then they rewrited this, or they handed down this in a document, those are became smriti. So, smritis are of divine interpretation, and it is not the direct words of God, but it is the repositions, or it is the repositories of the wisdom and knowledge of the sages. Whatever they heard, whatever they interpreted, whatever stayed in the memory of the sages, those are taken or interpreted as smritis. Okay, and then whatever knowledge and whatever wisdom the sages are recollected from their spiritual insight, and they handed down all those things, that became smriti. Okay, let's write down.
ठीक है, so this is Smriti. And in Smriti, what are the major things? Or there are many kind of Smritis. Manusmriti is one of the important Smritis among the Hindus. हम समझते मानू मनुस्मृति को बहुत सारा rules and regulation मनुस्मृति पे निया ହେଇଛି. So स्मृति रे basically थाए कौन? स्मृति रे तीनटा जिंस थाए. गोटे होची कौन? आचार, second होची व्यवहार, and third one होची प्रायश्चित. What is that achara, vyavahara and prayashchita? Achara means what is the conduct and morality of a human being. हमको को जिंस करिया कथा and हमको को जिंस करिया कथा नो. What are the good conducts and what morality a human being should contain. Then it comes to vyavahara. Vyavahara means what are the substantive rules the human beings need to follow. And last one is prayashchita. Prayashchita means the penal provisions or the punishments which the uh, human being must suffer after commission of any kind of wrong. So the Smriti mostly contain three types of principles: achara, vyavahara, and prayashchita. And if we talk about Smritis, there is one of the important Smriti, that is Manusmriti, and Manusmriti is treated as one of the most important Smritis. ठीक है जी, डन लिखा. Okay, अच्छा. I guess everything is understood. Everything. Okay, fine. So ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସ୍ମୃତିର. There are two types of smritis. The last part of smriti, that we have two types of smritis. One is dharma sutra and another one is dharma shastra. So what is change करेंगे slide. Okay, fine. So there are the smritis are basically of two types. Okay. One is Dharma Sutra and another one is Dharma Shastra. Okay. So what are the basic difference between Dharma Shastra and Dharma Sutra? First, write down. One is Dharma Sutra and the second one is Dharma Shastra. Okay. So the basic difference between Dharma Shastra and Dharma Sutra is that Dharma Sutra Smritis are written in prose style. Okay, this is written in prose style, and Dharma Shastra is written in poetry style. Okay,
Prose style means it is written like an essay और जोटा को हमें कहू गोटे प्रबंध भलिया लिखा हुए आ धर्मशास्त्र कौन पोएट्री स्टाइल बा कविता भलिया लिखा ठीक अच्छे तेणु धर्मसूत्र और शास्त्र भितर प्रथम डिफरेन्स या कौन धर्मशास्त्र सूत्र इज बीइंग रिटन एज प्रोज स्टाइल and dharma shastra is written like poetry style. Along with that, there are some other differences. So, dharma sutras are consist of short statements stimulating or formulating broad and general principles of common sense and justice. Okay, so it a pro style le pura puri likha hue, pura puri short statement दिया जाए जो कि broad general principles let down करा जाए, that is dharma sutra. ଆଉ मेजर धर्म सूत्र राइटर्स सब किए थिले माने स्मृति रे जो धर्म सूत्र राइटर्स माने थिले गौतम बौधायन अपस्तंभ विष्णु हरित ए माने सब धर्म सूत्र राइटर्स थिले ओके फर्स्ट धर्म सूत्र लिखिबा ओके तापर आसला धर्म सूत्र बा पोएट्री स्टाइल सो this type of smriti comprised of variety of commentaries and treatises and it encompass guidance on individual duties responsibility and ethical conduct within oneself so ଏଠାରେ କଣ होतला ना एटा गोटे पोएट्री स्टाइल रे बा कविता भलिया ए जिंसटा लिखा होतला जो थरे कौन थिला गाइडेंस थिला इंडिविजुअल मानको पई कि को जिंसटा करिबा कथा को जिंसटा करिबा कथा नुह गोटे इंडिविजुअल रो रिस्पांसिबिलिटी कोन तार एथिकल कंडक्ट कोन तो ए सब जिंस गोटे कविता आकार रे पोएट्री भलिया लिखा एंड को माने धर्म शास्त्र राइटर्स थिले मनु याज्ञवल्क्य नारद विष्णु देवल ए माने सब थिले कोन धर्म शास्त्र राइटर ठीक अछि बुझेला बुझेला दिटा जिंस ओके राइट डाउन Okay, understood everything. Please note down. तापरे हमें जिबा next source that is commentaries and digestion.
सरला तापर जिबा हमर नेक्स्ट सोर्स को दैट इज कमेंटरीज एंड डाइजेस्ट okay first let's understand why we need commentaries and digests because हम पाखरे श्रुति अछि श्रुति रो इंटरप्रिटेशन आसीगला स्मृति आकार पुणी हमको कमेंटरी एंड डाइजेस्ट काई दरकार पड़े रीजन एया होछि स्मृति रे जो सब प्रिंसिपल्स लेट डाउन कराइतला दैट वाज इनकम्प्लीट इन मेनी एस्पेक्ट बहुत सारा जिंस बहुत सारा क्वेश्चन ना आंसर जोटा कि ह्यूमन नेसेसिटी जमती जमती टाइम बड़ी बड़ी चलिबो लोक मानकर नेसेसिटी बड़ी बड़ी चल सो बहुत सारा एस्पेक्ट रे स्मृति रे कोनसी प्रकार रो किछि उत्तर बा कोनसी केतेटा एमतिया जिंस थिला केतेटा सब्जेक्ट थिला केतेटा एस्पेक्ट थिला जोथि कि स्मृति रे से विषय रे किछि लिखा जाय न ओके तापर कोन हैला जो स्मृतिटा कोन थिला स्मृति होची बेसिकली इंटरप्रिटेशन माने मु गोटे जिंस को पढी कि जति इंटरप्रेट करके लिखिबी आउ जने लोक जतरा से जिंस को पढिबो तार इंटरप्रिटेशन अलग ह तेनु जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आसिला तापर कोन हैला लोक मान को भितरे कॉन्फ्लिक्ट भी हैला कि कहला जने कहला जे नाही मु जोटा लिखुची सेटा ठीक आउ जने कहला जे नाही मु जोटा लिखुची सेटा ठीक तापर हैला कोन आउ गोटे प्रॉब्लम इंडिया गोटे बहुत बड़ सब कॉन्टिनेंट इंडिया रे ज्योग्राफिकली बहुत बड़ एरिया लोक माने डिफरेंट रीजन को आमे जतले मूव करिबा भाषा चाली चलन कल्चर सब जिंस धीरे धीरे चेंज हो जाए तो प्रॉब्लम को हैला जो स्मृतिज गुडा को लिखा होतला सेटा प्योरली संस्कृत लैंग्वेज रे लिखा होतला तो जो माने अदर लैंग्वेज रे लोक माने थिले तो से माने कोन कले प्रथम कथा ताको बुझी पारु नथले स्मृति रो सब कथा को बुझी पारु नथले और सेतबे संस्कृत समस्त भी पढु नथले कारण केवल जो माने ब्राह्मण्स थिले सेजेस थिले सेही माने संस्कृत भाषा जानुथिले अन्य लोक माने संस्कृत भाषा जानुथिले तो हैला प्रॉब्लम कोन एंड जेतु कस्टम्स भी प्लेस टू प्लेस लोकंकर अलगा हैला जो हमर जो चाली चलन कल्चर तो एगुडा सब जेतु अलगा हैला लैंग्वेज भी अलगा हैला तो समस्त को पाई कि डिफिकल्ट हैला टू अंडरस्टैंड स्मृति इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज ओके तो सेति पई कहला गोटे नेसेसिटी फील हैला एमंग द ऋषिज कि आमे एबे कोन करबा जे जो स्मृतिज रो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस अछि डिफरेंट स्मृति रे डिफरेंट जिंस लिखा है जे ताको आमे कोन करबा रिकॉन्साइल करबा माने बहुत सारा स्मृति को पढ़ी किना गोटिए डॉक्यूमेंट तैयारी करा जिवो बहुत सारा स्मृति को जणे पढ़िबो तापर से सबु जाक स्मृति को इंटरप्रेट करके गोटिए डॉक्यूमेंट लिखिबो ताकू कोन कहै जिवो डाइजेस्ट बा कमेंटरी बुझियला जिंस ओके तो ए जो डाइजेस्ट और कमेंटरी लिखा गला सो जेता बेले आमे कोन करू कौन पाई डाइजेस्ट कमेंटरी आसिला तो स्मृतिज गुडा को अगेन एंड अगेन इंटरप्रेट करा है कि ना जो डॉक्यूमेंट्स गुडा को लिखा गला ताकू कोआ गला डाइजेस्ट एंड कमेंटरीज ओके सो प्रथम इवोल्यूशन आसिला कोन श्रुति श्रुति रो क्रिएट हैला कोन स्मृति स्मृति रो क्रिएट हैला डाइजेस्ट एंड कमेंटरीज क्लियर ए पर्यंत क्लियर हैला सो एथिरे कोन थिला बा हमरो हिंदू लॉज रे हमरो 700 टू 1780 को कोन कहै जाय ना द एज ऑफ डाइजेस्ट एंड कमेंटरी कहै जाय and this is the most significant source of Hindu and they or the digest and commentary they records the traditional as well as new customs and they explain the modified and enlarged version of Smriti and by which harmony can be established in the society. ठीक अछि अच्छा ताले जो डाइजेस्ट और कमेंटरी भितर डिफरेंस को हैला तो आमे कोन कहले जो स्मृति रा इंटरप्रिटेशन हो जे डाइजेस्ट और कमेंटरी तो डाइजेस्ट और कमेंटरी भितर डिफरेंस हो जे एया जते बेले गोटिए स्मृति को इंटरप्रेट करा जाय कि लिखा जिवो ताकू कुआ जिवो कमेंटरी जते मोर देन वन स्मृति को यूज करके ना गोटे डॉक्यूमेंट लिखा जिवो ताकू कुआ हबो डाइजेस्ट ओके गोटे स्मृति रो गोटे डॉक्यूमेंट क्रिएट करा हबो इंटरप्रेट करा है ताकू कुआ हबो कमेंटरी जते मोर
देन वन स्मृति को पढ़ाई कि ना बा मोर देन वन स्मृति को इंटरप्रेट करा है कि गोटे डॉक्यूमेंट तैयारी करा जिवो ताकू कोआ जिवो कोन डाइजेशन क्लियर हैला बुझी हैला ओके एबे लिखिबा डाइजेस्ट कमेंटरी एठी हमर कंप्लीट होची तो एबे हमें आपको लिखि डन लिखा सरला देन
Done. Commentary and digest बुझेला? Any doubt? नहीं थी बुझिएला ठीक तापरे जिबा next ଆମର fourth source, ancient source, that is custom and usages. This is the last ancient source of Hindu. What are the customs and usages? So basically customs and usages are some practices which significantly influence the Hindu law or the systems of Hindu law. So basically these are some kinds of practices. Okay, so there are all these practices. They are not just practices, they are crystallized practices, which means they are clear, they are certain, so they are being practiced for a long time immemorial. केबेठु एटा आरंभ होइछि, केबेठु चली आसीछि कस्टम की यूसेज प्रथा हमको जाना नहीं. So that's why these are crystallized things. So basically what are customs and usages? So customs and usages are some kind of crystallized practices followed by a community or a group of people for a time immemorial. Okay, and ये जो custom and usage आर definition कोठी दिया है various Hindu law रे जो acts गुड़ाक अच्छी, जो legislation गुड़ाक अच्छी, सेथिरे यार definition दिया है. जमती कि section 3A Hindu Marriage Act रे custom and usages रा definition दिया है. Hindu Marriage Act 1955. तापरे आउ कोठी दिया है section 3D of Hindu Succession Act 1956 etc. तो एमते बहुत सारा एक्ट रे कस्टम एंड यूसेजेस रा कोन करा है ना डेफिनेशन प्रोवाइड कर. एंड कस्टम यूसेज कोन सिग्निफाई करे? ये सिग्निफाई करे देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स which have been continuously and uniformly observed for a long time and it has obtained the force of law. इतने दिन जो तुले चली आसे तो इतने कौन हुए ना ये लॉ रा बा आधरे गोटे फोर्स अटैच हे जे, गोटे सैंक्शन अटैच हे जे जे आमे आकु मानिबा पई कि बाध्य हो. आकु जे न मानिबा ता पई कि डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस थिबो. मे बी ताकु सोसाइटी रो बासंद करा हबो, ताकु किछि टाइप ऑफ पनिशमेंट भी सोसाइटी रे दिया जाई पारे. एमते बहुत सारा कस्टम्स अछि, किछिटा को लॉ एक्सेप्ट करूछि, किछिटा को लॉ एक्सेप्ट भी करू. कमते कस्टम लॉ एक्सेप्ट करूछि जेमते बाहागर हिंदू मैरिज जे आमे आमर हिंदू धर्म अनुसार बाहागर केमते हुए अग्निया को साक्षी रखी कि गोटे पुओ और गोटे झियो बाहा होंती एंड से गोटे पुओ झियो तांको भितरे कोनसी गोत्र से दी जनकर समान हे नथिबो, पिंड सपिंड सेमानकर समान हे नथिबो. सेमाने कोनसी एमितिया रिलेशनशिप रे आसु नथिबे जोटा कि जो दीटा रिलेशनशिप रे बाहा होबा मना. जबति कि जणे माई तांको भणजा को बाहाई परिबे, मामू तांको भाणीजी के बाहाई परिबे. तो एई सब रिलेशन रे बाहागर हुए. सो एगुडा थिला कस्टम. आगुरु एटा कस्टम थिला जेतले हमर लॉ नथिला, लोक याकु गोटे प्रथा भलिया मानुथिले. किंतु एबे देखो जबे जदी हिंदू मैरिज एक्ट खोली किना देखिबो सबु एई जिंस एक्ट रे लिखा है जे जदी सप्तपदी नै किना निया को साक्षी रखी कि बाहा होउछ देन दैट इज अ वैलिड मैरिज. कोर्ट मैरिज में वैलिड मैरिज, किंतु जदी जणे अग्नि को साक्षी रखी बाहा होउछ दैट इज आल्सो वैलिड मैरिज. सेकेंड जिंस कोन? सेकेंड जिंस लिखा है जदी तमे सपिंड रिलेशनशिप रे बाहा होउछ बा तमर गोत्र समान तमे बाहा होउछ दैट मैरिज इज नॉट एक्सेप्टेबल. कि तमे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भितरे बाहा ही परिबनी किबा भाई भौणी कर बाहागर हबनी, मामू भाणीजीकर बाहागर हबनी, माई और भणजाकर बाहागर हबनी, जे दादा अछंती तांको सहित झियाकर बाहागर हबनी. ए सब कथा एबे लॉ रे भी लिखा है. तेणु कस्टम कोन? जेतेले कस्टम गोटे बा गोटे प्रथा बा गोटे नियम सोसाइटी रे बहुत दिन पर्यंत चले आ एक्सेप्टेड हुए एंड सेटा इमोरल हे नथिबो, पब्लिक पॉलिसी को अफेंड करू नथिबो, कंटीन्यूअसली लोक ताको एक्सेप्ट करूथिबे, तो से जगह कोन हो जाए ना कस्टम ता एक्सेप्टेबल हे जाए.
एंड ताको लॉ रे भी डिपिक्ट करा जाए बा लॉ रे भी रिफ्लेक्ट करा जाए। तो एबे हमें पढ़िबा कस्टम्स रा टाइप्स सब कोन कोन अछि, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ और टाइप्स ऑफ कस्टम्स। नंबर 1 पे प्रथमटा होछि कोन हमरा लोकल कस्टम। लोकल कस्टम कोन जोटा को गोटे पर्टिकुलर एरिया रे लोक माने मानନ୍ତି, एटा सबु आडे न थाए, केतरा एरिया रे थाए। जमती कि पुरी साइड रे जो लोक माने थांती तांको एरिया रे बहुत सारा प्रथा थाए जोटा कि पूरा ओडिसा रे कि मानନ୍ତି ने, बट सेही साइड रे लोक माने मान। तो लोकलिटी मींस बा लोकल कस्टम मींस व्हिच प्रिवेल्स ओवर इन ए लोकेलिटी, इन ए एरिया और लोकेलिटी। तापरे सेकंड होचे आउ कोन टाइप रो कस्टम थाए, कास्ट एंड कम्युनिटी। तो एटा कोन करे केवल गोटे कास्ट को अप्लाई करे किबा कम्युनिटी को करे, जमती कि हमर ब्राह्मण मानकर गोटे कास्ट कस्टम अछि व्रतपनायन, एटा केवल ब्राह्मण माने ऑब्जर्व करे। तो एटा कोन करे बा कास्ट कम्युनिटी कस्टम कहा को प्रिवेल करे, इट प्रिवेल्स ओवर ए कास्ट एंड कम्युनिटी। आउ कोन अछि ता सहित अछि फैमिली कस्टम। फैमिली कस्टम कहा को अप्लाई करे, एटा केवल परिवार भितरे सीमित थाए, केवल एटा एप्लीकेबल हुए कोठी फैमिली भितरे, जण जणकर फैमिली रे किछटा ताकर निजर कस्टम थाए जोटा कि सेही फैमिली रे लोक मानନ୍ତି, एप्लीकेबल ओनली इन द फैमिली। So these are the kinds of customs. तापरे हम नेक्स्ट डिस्कस करबा व्हाट आर द एसेंशियल्स टू मेक ए कस्टम ए वैलिड कस्टम। ओके, तो जे कोनसी नियम को हमें आनी कि ना थोपी दे परिबानी जे एटा होची गोटे वैलिड कस्टम, जे कोनसी कस्टम को करा जाय परिबो नै। गोटे कस्टम को वैलिड होबा पई कि हेले ताको केतेटा क्राइटेरिया भितरे फॉल करिबा दरकार, अदरवाइज कस्टम वैलिड कस्टम नै परिबो नै। सो नेक्स्ट हेडिंग होची व्हाट आर द एसेंशियल्स of a valid custom. नंबर 1 प्रथम जिंस कौन दरकार गोटे एसेंशियल कस्टम होबा पई कि एंटिक्विटी। एंटिक्विटी कौन? एंटिक्विटी मींस इट मस्ट बी ऑफ एंशिएंट। एटा केबे आरंभ हेची सडा को केही जानि नथिबे। जदि एबे वर्ष तळु गोटे नियम को आरंभ करा जिवो मु कहबी जे नाही सेटा होची कस्टम ना, सेटा को एक्सेप्ट करा हबो ना। एंटिक्विटी मींस इट इज ऑफ एंशिएंट नेचर or it should be followed or observed since time immemorial. Followed since time immemorial. टाइम केबा केबेठु एटा आरंभ होइछि ताको केही कहि पारु नथिबे, तो सेतेरे हम ताको कहबा एंटिक बा एंटिक्विटी अछि बोली कस्टम रा। तो दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल। तापरे ए कस्टम नीड टू बी सर्टन। सर्टन मींस जहा कहउथिबो गोटे कथा कहउथिबो, क्लियरली कहउथिबो। अलगे कोनसी दुई प्रकार मीनिंग बाहरुथिबो कि गोटे कस्टम रु तीन प्रकार मीनिंग आउथिबो, दैट कस्टम इज नॉट एक्सेप्टेड। तो कस्टम नीड्स टू बी क्लियरली डिफाइंड। So certain कौन? Certain means it needs to be clearly defined and it cannot be confusing and not confusing. यदि confuse होउथिबा हमें कस्टम टाको देखि के ताले केबे भेले इट इज नॉट ए गुड कस्टम। तापरे थर्ड रे कोन आसीबो? रीजनेबल। Okay, what is the meaning of reasonable? Reasonable means it aligns with the fundamental principles of morality. एटा morality को oppose करू नथि। जेमति कि हम सोसाइटी गोटे कस्टम थिला सतीदाह प्रथा। जदि गोटे लोकर बा गोटे स्त्री लोकर स्वामी रो डेथ हे जाउतला ताको नियारे जळे। तो ए जो कस्टम ता थिला दैट इज नॉट ए गुड कस्टम, सेति पई त ताको एबे हम एक्सेप्ट करू नै, एटा बंद ही गला हैला। तो reasonable means it sufficiently accepts the fundamental principle of morality. It aligns with the fundamental principles of morality.
then it need to be continuous. जेबेठू एटा आरंभ होइथिबो जो एंशिएंट टाइम रु आरंभ होइथिबो सेबेठू कंटिन्यू करथि जदि केबे भी देयर इज अ प्रूफ दैट ए कस्टम इज बीइंग डिसकंटिन्यूड ताहले हम एको एक्सेप्ट करबा नै इट शुड बी कंटिन्यूअस इट मस्ट नॉट और इट शुड नॉट discontinued at any point of time. Okay, and what are the other principles? It should be it must has some kind of conformity with law, morality and public policy. Conformity with law, morality and public policy. Okay, tamane it must not be against any law or public policy or of any kind of morality. And the law makes it, if the law makes any kind of custom forbidden, then it will not be accepted as a valid custom. जेमति कि सतीदाह प्रथा, it is not accepted. आमर जो जौतुक प्रथा थिला, this is also a custom. जौतुक प्रथा को किंतु law मना कर देछि बा जो डाउरी सिस्टम को law मना करछि by Dowry Prohibition Act. गोटे एक्ट अछि हमर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1962 सेथिरे लॉ मना करदेला जे नाही कोनोसी भी जगह रे जौतुक नबा किबा जौतुक दबा होची गोटे ऑफेंस तो से जगह रे जौतुक प्रथाटा इज नॉट ए वैलिड कस्टम तेनु लॉ मोरालिटी पब्लिक पॉलिसी ए सब जिंस सहित भी कस्टम को ताळ देकी चलिया को पड़े जदि लॉ कस्टम को वैलिडेट करिवो नाही कस्टम वैलिड कस्टम हितबो नाही बुझियला कस्टम एंड essentials of valid custom and usage understood. Okay, so eiti amara ancient sources sorry now we will move towards the modern sources तो आम डिस्कस करथिले जो modern sources अछि हिंदू लॉ रा that is of three types. Okay, why these are regarded as modern sources because eta both ही ancient time period रो ए sources गुडा को discover कराय छै बा ए sources गुडा को हिंदू लॉ को contribute करछ that's why हम पूछ पड़ा modern sources कोन modern sources अछि हम first होछि legislation. Legislation means the law made by the parliament or state legislation. तापर असला precedent. Precedent is the case laws or the judgments decided by the courts. And last, there is a principle called justice, equity, and good conscience. Okay, so these are the three modern sources. So we will discuss it one by one. So the first modern source is legislation. Legislation means the law which is made by the parliament or the state legislature. And nowadays legislation has become the potential and modern source of Hindu law. And it has a lot of importance in the evolution of modern Hindu law. And legislation is the codified form of law. Basically हम जब बुझिबा जे व्हाट इज लेजिस्लेशन लॉ को जतले हमें सिस्टमैटिकली कोडिफाई करू बा राइट डाउन करू बा गोटे बुक रे आको कन्फाइन करू ताको कोन कहै छै लेजिस्लेशन एंड दिस इज द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर मींस हमर के रहिले हमर पार्लियामेंट रहिले स्टेट लेजिस्लेचर रहिले आंको काम कोन ए माने लॉ तयारी करबा होछि आंको काम तो फर्स्ट लिखो व्हाट इज लेजिस्लेशन इट इज द codified form of law which is an act of the legislature. ठीक अछि सो जेतले हमर लीगल
बा लॉ तैयारी करबा सिस्टम नथिला कारण एटा बहुत परे आसिला जले ब्रिटिशर्स माने इंडिया को आसिले तो से माने कोन कले माने फॉरेन रा बा इंग्लैंड रा जो सिस्टम थिला सेटा को आनी कि इंडिया रे इंप्लीमेंट करे सो सेही माने कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी ए तीनटा ऑर्गन एस्टैब्लिश करे तो जब एस्टैब्लिश करेले तादरे जो लेजिस्लेचर थिला लेजिस्लेचर को काम कोन थिला ए माने लॉ तैयारी करिवे एग्जीक्यूटिव रा काम थिला इंप्लीमेंट करिवे एंड जुडिशियरी रा काम थिला एनफोर्स करिवे तो एक्चुअली लेजिस्लेचर पूर्वरु बा लेजिस्लेशन आसीबा आगुर कोन थिला देयर आर डिफरेंट रूल्स different practices which are prevalent in the different parts of the country so kon होतला जो रूल्स एंड रेगुलेशन गोटे गोटे पार्ट रो आगु पार्ट को जेतला हम जाउतले रूल्स गुडा का चेंज होतला तो रूल्स भीतर किछि यूनिफॉर्मिटी नथिला तापर ब्रिटिशर्स माने आसिला परे कोन करले जे लेजिस्लेशन सिस्टम मानले जे गोटे नियम तयारी हबो जोटा कि पूरा कंट्री को एप्लीकेबल हबो आउ एमती मन इच्छा ए जगह रे गोटे रूल से जगह रे गोटे रूल एमती हबो नै so there are some kind of important legislations of Hindu law so आमे आपको नोट डाउन करिया बहुत किछि जिंस आदर पढिबार नै दिस इज इट एटा आगुर कोन होतला ना बहुत पार्ट रे अलगा अलगा लॉस थिला तेनु लेजिस्लेशन बना है कि ना हमर कोन हैला यूनिफॉर्मिटी बा यूनिकनेस आनिबा पे के चेष्टा कर ओके सो नोट डाउन सम एग्जांपल्स ऑफ लेजिस्लेशन ओके आमे जतले एग्जांपल्स नो इंपोर्टेंट लेजिस्लेशन रा ये लेजिस्लेशन को हमें दीटा पार्ट रे डिवाइड कर गोटे होची हमरा प्री इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन आ गोटे हैला पोस्ट इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन कारण हम इंडिया रो इंडिपेंडेंस पूर्व भी बहुत सारा एक्ट ब्रिटिशर्स माने बनेइतले सो इफ वी टॉक अबाउट द प्री इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन there are the following legislation. Number 1, the Caste Disabilities Removal Act. (1850). Second, the Hindu Women Right to Property Act 1937. Third, the Child Marriage Restraint Act 1929. Then the Hindu Disposition of Property Act 1916. So these are the acts of Hindu law which are made before the independence era or in the pre-independence era. All these acts are being like made. Then after independence, there are 4 major acts which are enacted by our legislature. जोटा को कि आज पर्यंत हमें फॉलो करछ एंड these acts are the most important acts and आपको हमें ए हिंदू लॉ रो जो सिलेबस हमर अछि तादर भी पढी ठीक अछि देन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा रो एक्ट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 the Hindu Succession Act 1956 the Hindu Minority and Guardianship Act 1956 and lastly the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 या
छड़ा आउरी भी बहुत सारा एक्ट एनाक्ट हेची जेमति कि फैमिली कोर्ट एक्ट तो एटा एते इंपोर्टेंट हुए तो these four acts are most important acts which are enacted after the independence. Understood? Got it? Okay. बुझेला? तापरे towards the next source, that is precedent. First, what is precedent? Precedents are the judicial decisions or the judgments pronounced by the court. So precedent basically kona? The judicial decisions. Or we can say that the judgments pronounced by the court. Okay, अच्छा एथिरे तो गोटे कथा बुझिबार अछि जो प्रेसिडेंट रे हमें जो कोर्ट रा डिसीजन कथा कहछे नॉट एवरी कोर्ट्स डिसीजन इज अ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हबा पई कि हेले दैट डिसीजन मस्ट बी द डिसीजन ऑफ ए हायर कोर्ट और द अपेक्स कोर्ट व्हिच मींस आमे जदि इंडिया बेसिस रे देखिबा द हाईएस्ट कोर्ट इज द सुप्रीम कोर्ट सो सुप्रीम कोर्ट रा डिसीजन होची प्रेसिडेंट और स्टेट लेवल ले जदि देखिबा दिस इज हाई कोर्ट whose decision is binding. ओके सो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रा डिसीजन को कौन कुआ जाए प्रेसिडेंट कुआ जाए एंड इट बाइंड्स ओवर ऑल द कोर्ट्स ऑफ द इंडिया ओके एंड सुप्रीम कोर्ट रा जजमेंट जतले इंडिया रो सबु कोर्ट को ऊपर बाइंड हुए हाई कोर्ट रा डिसीजन केवल हाई कोर्ट जो स्टेट रा से स्टेट रे जति के इंफीरियर कोर्ट्स थांती तांको ऊपर बाइंडिंग बुझेला एबे अंडरस्टूड So, write down एससी माने सुप्रीम कोर्ट एससी माने हाई ओके बुझेला जिनस अच्छा या पर हमें दीटा छोटे छोटे केस डिस्कस करिए जोटा कि ए पॉइंट पे के रिल अच्छा लिखा सरछि सो केस दीटा डिस्कस करिए फर्स्ट केस होछि हमर दूधनाथ वर्सेस सत्यनारायण राइट 1966 रा केस अच्छा ये केस रे कौन डिस्कस हेतला इथिरे जो अलाहाबाद रो जो हाई कोर्ट थिले उत्तर प्रदेश रा हाई कोर्ट ये डिस्कस करले जे हिंदू लॉ इज नॉट ओनली शास्त्रिक लॉ शास्त्रिक लॉ मीन्स एटा केवल शास्त्र रे लिखा है हिंदू लॉ गोटे एमतिया लॉ नुहे जोटा कि खाली शास्त्र रे लिखा है बट आल्सो इट इज ए काइंड ऑफ लॉ व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट केस जोथरे कि कोर्ट कौन कहले जेटा केवल गोटे शास्त्रिक लॉ नुहे दिस इज आल्सो ए लॉ व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट बुझेला जिंस
ठीक अच्छे देन जीवा सेकंड केस को सेकंड केस इज लुहार अमृतलाल नागजी वर्सेस दोषी जयंतीलाल ओके 1960 लुहार अमृतलाल नागजी वर्सेस दोषी जयंती ठीक है खाली अमृतलाल नागजी वर्सेस दोषी जयंतीलाल लिखले दैट इज फाइन सो ए केस रे सुप्रीम कोर्ट दिस इज द सुप्रीम कोर्ट केस सुप्रीम कोर्ट आधरे हेल्ड करथिले जे द जुडिशियल डिसीजंस और द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नाउ इट इज हैव बिकमिंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हिंदू लॉ सो कोर्ट कहले जे आगुर को होतला जतले हमर हिंदू लॉ कथा हमें भाबुतले सेतले हमें शास्त्र को जाउतले वेद को जाउतले उपनिषद को रेफर करतले तो नाउ इट इज हमें कोन करछे हिंदू लॉ कहले हमें कहा को रेफर करछे हमें रेफर करछे कोर्ट कर डिसीजन एंड कोर्ट कौन करछंती जो डिसीजन गुडा दउचंती एथिरे से इफेक्टिवली हिंदू लॉ रो जो प्रिंसिपल्स अछि एब्सेंट प्रिंसिपल अछि ताकू एनहांस करूचंती ताकू मॉडिफाई करूचंती ताकू अल्टर करूचंती जोटा कि एबे हिंदू लॉ रो गोटे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट सोर्स हे परछि तेनु कोर्ट रो डिसीजन को एठी बहुत ही बेसी एम्फासिस और इंपोर्टेंस देना कोर्ट कहते बुझियला जिंस to write down the decision सरीले कहबो मु पेज चेंज कर okay done so the second source is complete and now we are moving towards the our third modern source that is the principles of justice equity and good conscience okay so what is justice justice means nyaya so this principle or all these principles are used or are like exercised by the judges while they pronounce the judgment okay तो ये कौन इक्विटी मीन्स फेयरनेस इक्विटेबल ट्रीटमेंट सो सबु जगह रे आमे एमतिया डिसीजन दे परिबनी जोटा कि जनरल हे फॉर एग्जांपल जड़े लोक रॉन्गफुल गेन करिया पेन कि जनक घरे चोरी करछ से जगह रे जज ताको पनिशमेंट देबे जे तमे आउ जनक घर काई चोरी करछ बट सेम जगह रे आउ गोटे सिचुएशन रे कहै छी गोटे लोक 10 दिन हला किछ खाई नथिला सेति पई से दुकान रो चोरी करछ तो सेकंड सिनेरियो रे मे बी जज ताको पनिशमेंट न दे परंती बिकॉज़ जणे जदी 10 दिन हबो न खाइबो तार केते डेस्परेशन थिबो फूड पाई तेणु से केमती कोन निजो को बंचेबा पई कि कोन करछि चोरी करछि तेणु ए जगह रे काहे कि प्रथम केस रे जे चोरी करथला ताको
पनिशमेंट दिया गला सेकंड केस रे काहे दिया गला काहे ना बेले बेले जो प्रिंसिपल्स केवल हमर जो लॉ रो जो लीगल प्रिंसिपल अछि ता सहित जस्टिस इक्विटी गुड कंसेंट जजेस मान को यूज करिया को पड़े केवल जे गोटे डिसीजन केवल जे गोटे जजमेंट जोटा कि खाली लीगली साउंड हेतिबो गोटे जजमेंट सोशियली भी साउंड हेतिबा दरकार ओके सो इक्विटी मींस फेयरनेस और इक्विटेबल ट्रीटमेंट इक्वालिटी कौन समस्त को एका भलिया ट्रीट करिया इक्विटी कौन कि जो जगह दरकार अछि जण को टिके एक्स्ट्रा कंसर्न देखैबार से जगह हम एक्स्ट्रा कंसर्न देखि पर एंड ये जो तीनटा प्रिंसिपल हम एबे डिस्कस करछे दीस प्रिंसिपल्स आर सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू law or these principles contributed a lot towards the Hindu law. And these principles largely depend on maintaining impartiality. So, a principle अच्छी ସେଥିପାଇଁ judges ମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ partial ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା bias ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ towards anyone. So, all these legal concepts are firmly rooted in the principles of justice, equity and good consent. When we are talking about the ancient sources, they do not explain a specific aspect or the same is governed by the principles of justice, equity and good consent. Even our primary जो prior का जो previous sources थिला ancient sources थिला तार भी justice, equity, good consent कथा impliedly बहुत जगह रे mention कर. Okay, clear है बुझेला how these principles help because these principles created impartiality in the mind of the judges by which they can pronounce better decisions. बुझेला right now ठीक अच्छे ओके आदरे हम गोटे केस लॉ डिस्कस करबा सुप्रीम कोर्ट केस लॉ सो दिस पेज इज ओवर so there is a case called Gurunath versus Kamlabai. In 1951 okay ये केस में सुप्रीम कोर्ट कहले जो जगह रे if there is any place where there is no law or there is an absence of law or Hindu law has not provided any rule so at that particular point
The judges have authority. They can decide the cases based upon the principle of justice, equity and good conscience. तो कोर्ट कहले जो जगह हिंदू लॉ रे किछि प्रिंसिपल नाही एमतिया किछि सिचुएशन अछि जोडे कि हिंदू लॉ साइलेंट अछि जज सेतरे डिसीजन ता देबे तो से डिसीजन ता जज केमति देबे जज तांकर जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसेंट जो प्रिंसिपल अछि ताकू यूज करके ना डिसीजन देबे. Okay, note down. Okay, done. Any doubt? जहाँ भी आज पढ़िले sources आज हमर end हला. So any doubt regarding the sources of Hindu law? नहीं So ठीक अछि. So next class start करिबा schools of Hindu law. So sources is over. माझी notes forward कर देबी. And please give me your mail ID. Okay, कारण आउ class हमर आउ like public हबनी. This is next to class गुड़ाक privately uploaded हबो. तो please give me your mail ID. तो सेइतरे ही mail ID रे ही notification जिबो class recording upload ହେଲା परे सेटा तमे YouTube रो देखबे. Notes टा भी तुमको individually share करा हबो सेटा public रे हबो. So that's why please give your mail ID. Okay, so now please let's wind up today's session. Thank you. Bye. Good night.